and welcome everyone back to my YouTube channel. I am Sneha and I'm really sorry for the delay in the video because I was really preparing for this session so that you all can ace your arithmetic progression this time in your 10th boards. So as you all know that the syllabus that is reduced by CBSE, it is the word problems involving the arithmetic progressions. So you are only left with your n terms and the sum of the n terms. Rest you don't have to read. And all the questions that I have involved in today's lecture, these are just amazing because these are the previous year questions, so you can practice at your own. And I am assuming that you have actually studied arithmetic progression and you know some of the basic concepts regarding it, because here we are just revising it. It's the one shot revision, but it involves two videos. This video it is regarding the nth term and the next video it would be regarding the sum of n terms. So here I would like to share some information with all of you that if you haven't subscribed, then do subscribe, because I really need some love of yours so that my channel can grow. And yeah, that's very important so that I can share the free education with all of needy students. So that's very important. My aim is here 400 subscribers first of all to complete in 1 month, and on completing that I am telling you, I promise that I will share my SST short notes. Okay, on completing the 1000 subscribers I will definitely share my SST short notes, but on completing my 100 subscribers I would try to share with you some of the mind maps and some of the important points, as well as my notes of maths and science, which is very important. And I will share some of the mind maps of some chapters of SST as well, and my short notes on 1000 subscribers. So it's very important that you stay connected with my channel for the upcoming details. So now, without any further ado, let's get started. So now I am assuming that you are having a basic idea of what is an arithmetic progression. What is a sequence? It is just a term that, like, consider here. Let us take an example. I have 1, 2, 3 and 5. Then can you tell me that what would be the next term of this sequence? Is sequence में you would generally observe that 1 and 1 is giving me 2 and 1 gives me 3 and 3 and 2 gives me 5. Means it is following a specific pattern that the previous two terms on addition gives me the next term. So that is the pattern which is being followed. 5 plus 3 gives 8, 8 plus 5 gives 13, and so on. 13 plus 8 you will get your further terms, and it is forming a sequence. And when you add the terms of a sequence, it just becomes a series. And arithmetic progression, it is also a sequence which follows a specific pattern. Okay, it is following a specific pattern. In simple words, arithmetic प्रोग्रेशन हमारे पास एक वो सीक्वेंस है जिसमें एक पहली टर्म यानी कि जो फर्स्ट टर्म जिसको हम ए से डिनोट करते हैं, उसका कुछ कॉमन डिफरेंस होता है डी, एंड वो उसी कॉमन डिफरेंस के साथ आगे प्रोसीड करती है. जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 12. These are the multiples of 2. And अगर आप यहाँ पे इसको consider करोगे, so you would see that 2 is the common difference. How do you obtain the common difference? Common difference, it is the next term. So let us say T3 minus T2 or T4 minus T3, that is going to be my common difference. अब यहाँ पे 8 minus 6 करने से मुझे 2 मिलेगा. अगर मैं T3, अब यहाँ पे थर्ड टर्म कौन सी है? इट इज 6, और यहाँ पे सेकंड टर्म कौन सी है? 4. 6 minus 4 2. और ये चीज़ आगे इनफाइनाइट टर्म्स तक, ये अगर ये कहीं तक भी AP जा रही है, वहाँ तक के लिए ये चीज़ ट्रू है. व्हाट इज द जनरल फॉर्मूला? जनरल फॉर्मूला इज AN is equal to A plus N minus 1 into D. Okay, this is the general formula for the arithmetic progression. D is the common difference, N is the number of terms, Anth is the जिस टर्म के लिए आप इसको स्पेसिफाई कर रहे हो. ओके, सो आई होप ये फॉर्मूला आपको पहले से पता है. इसकी डेरिवेशन में हम नहीं जाएंगे बिकॉज दिस इज द रिविजन. एपी क्या होती है, जनरल टर्म क्या होती है. आई होप ऑल दिस थिंग्स इज क्लियर टू यू. एंड अगर आपने इतना कॉन्सेप्ट ले लिया ना, आप यहाँ पे ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो बिकॉज दिस इज वेरी इजी. एंड अगर आपको कभी भी ये चीज़ चेक करनी होती है कोई चीज़ एपी में है या नहीं है, सो वन थिंग दैट यू हैव टू कीप इन माइंड, वो चीज़ मैं यहाँ पे बता रही हूँ आपको, तो इस चीज़ को थोड़ा ध्यान से सुनना कि अगर आपको कभी भी ऐसे ही क्वेश्चन, आई डोंट थिंक कि CBSE पूछेगी, बट कुछ नॉलेज अपने लिए रख लो. अगर आपको कभी भी चेक करना है ना कि कोई भी टर्म AP में है या नहीं है, तो हाउ डू यू चेक इट? TN minus TN minus 1. जैसे आपको एक पार्ट दे दिया जाएगा, ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में इसके क्वेश्चंस बता दूंगी. तो यहाँ पे आप एक्चुअली डिफरेंस
जो है कॉमन डिफरेंस यहाँ से चेक करते हो, Tn माइनस 1 से आप कॉमन डिफरेंस चेक करते हो, अगर जो वैल्यू आती है इट इज़ अ कांस्टेंट टर्म तो मतलब वो एक AP फॉर्म कर रही है, लेकिन अगर वो वेरिएबल्स की फॉर्म में आती है देन इट इज़ नॉट एन AP। ओके, तो इसको मैं नेक्स्ट वीडियो में इंक्लूड करूँगी। नेक्स्ट वीडियो भी इस वीडियो के बाद ही पब्लिश हो जाएगा। छोटे छोटे वीडियोज़ रखनी है ताकि आपके पास भी ज़्यादा बर्डन ना पड़े। ओके, सो नाउ यहाँ पे ये तो बहुत ईजी है, बहुत ईजी। हैविंग 4 एज ए फर्स्ट टर्म, 4 है भाई, एंड -3 एज ए कॉमन डिफरेंस, तो आप टर्म्स कैसे लिखते हो, T1 कैसे लिखते हो, T1 आपकी आ गई A, इट इज़ 4, T2 कितनी आती है, इट इज़ A प्लस D मीन्स 4 माइनस 3 इट इज़ 1। तो CBSE में स्टेप मार्किंग होती है तो आप स्टेप्स लिख के बताना है इस चीज़ को। T3 आ गया A प्लस 2D। अब ये भी पता ना A प्लस 2D क्यों होती है, A प्लस n माइनस 1 इंटू डे वाले फॉर्मूला से, ठीक है, n माइनस 1 होते हैं, जिस टर्म पे वो होती है उससे एक स्टेप कम। यहाँ पे मैं जल्दी जल्दी बता रही हूँ बिकॉज आई थिंक यू ऑल हैव दिस बेसिक आइडिया। ओके, तो A प्लस व्हाट इज A प्लस 2 into -3 means 4 minus 6. So here you can easily calculate it is going to be -2. So 4 1 minus 2 it is going to be the AP and you can calculate it term so on. तो आप पहले 3 टर्म्स निकाल के बता दिया करो, उससे वेरिफिकेशन ईजी हो जाता है। Now the next thing that we have is nth term from the end and यहाँ पे मैं आपको डायरेक्टली यही चीज़ बता रही हूँ कि जो nth term from an end होता है, जैसे यहाँ पे आपके पास A टर्म आ गई, ठीक है, ये पहली टर्म आ गई, दिस इज़ योर फर्स्ट टर्म एंड यहाँ पे ND है। देखो अगर मेरे पास यहाँ पे पहली टर्म मैं मानती हूँ कि दिस इज़ 2 एंड यहाँ पे 2 में मैंने कॉमन डिफरेंस रखा 2 का ही एंड दिस इज़ 4 देन 6 देन यू हैव 8 एंड सो ऑन, यहाँ तक आपकी टर्म्स आगे जा रही हैं। अब जब टर्म्स आगे जा रही हैं तो यहाँ पे A प्लस ND मान लेते हैं कि ये जो है 8 10 11 12, ये यहाँ पे 14 पे ये जो चीज़ है ये लास्ट टर्म इसकी आती है 14, ठीक है, लास्ट टर्म इसकी आती है 14। अगर मुझे बताना है यहाँ से कि इसकी मतलब लास्ट से मुझे बताना है कि यार इसमें कितनी टर्म्स हैं, इसमें पहले देखते हैं टर्म्स कितनी है। an इज इक्वल टू 2 प्लस n माइनस 1 इंटू डी, कॉमन डिफरेंस 2 का है और 14 इसकी वो वाली टर्म है। 14 माइनस 2 2n माइनस 2, 14 माइनस 2 12 प्लस 2 इज इक्वल टू 2n एंड दिस इज 12 प्लस 2 14 एंड n इज इक्वल टू 7। ओके, तो यहाँ पे n इज इक्वल टू 7 आ रही है। तो मतलब यहाँ पे जब भी आपको क्या करना है, nth टर्म फ्रॉम एन एंड निकालना है, तो nth टर्म फ्रॉम एन एंड निकालने के लिए आपको क्या चीज़ करनी है, आपको ये वाला फॉर्मूला यूज़ करना है। यू हैव टू यूज़ दिस फॉर्मूला एंड दिस फॉर्मूला इज L माइनस n माइनस 1 इंटू डी। L माइनस n माइनस 1 इंटू डी, अगर आपको यहाँ पे कोई भी टर्म निकालनी है लास्ट से तो ये फॉर्मूला आप यूज़ करोगे। n आपको निकालना है इसी तरह से, ठीक है, और यहाँ पे n आपको निकालना ना, ये n क्या बताते हैं कि इसके अंदर नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, ठीक है, 2 4 6 8 10 12 और 14, इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है वो आपको बता रही है। इतनी टर्म्स हैं तो आपने n की वैल्यू यही सब्सटीट्यूट करनी है, -1d आपको जो कॉमन डिफरेंस है, जो कॉमन डिफरेंस कितना आएगा, अब यहाँ पे देखो 14 है और यहाँ पे 14 के पीछे आएगा मेरे पास 12। तो यहाँ पे जब आप कॉमन डिफरेंस कैलकुलेट करते हो ना, अब जब आप यहाँ से यहाँ पे जाते हो कॉमन डिफरेंस आप करते हो T3 माइनस T2, बड़ी वाली टर्म में से छोटी वाली टर्म, यहाँ पे आपको छोटी वाली में से बड़े वाले को सब्ट्रैक्ट करना है। 12 माइनस 14 कितना होगा, -2, तो आपको D की वैल्यू -2 सब्स्टिट्यूट करनी है, इस चीज़ का ध्यान रखना है। और L तो आपको दी हुई है यहाँ पे, 14 अगर नहीं दी हुई है तो AN वाले फॉर्मूले से आप इसको कैलकुलेट कर सकते हो। This thing is clear to all of you guys. Let us move on to this question. This is find the sixth term from the end of the AP. Now the AP given to you, what you have to do is substitute the values in this formula. That is the thing that you have to do. L minus n minus 1 into D, you have to do this thing, and when you put the value of D L minus 1 you get 25 as your answer. Okay, now move on to the next part, middle term of an AP. आपने ये चीज़ 9th में भी पढ़ी होगी कि हाउ टू कैलकुलेट, आपने ये पढ़ा होगा स्टैट्स में, ठीक है, स्टैट्स में आपको बताते हैं मिडिल टर्म अगर ऑड टर्म्स आती है तो n+1/2 होता है, एंड अगर इवन टर्म्स आती है तो आप कैसे निकालते हो, n/2 और n/2+1 करते हो, देन उसके बाद उन दोनों टर्म्स का मीन लेते हो, देन यू कैलकुलेट मिडिल टर्म। तो उसी के ऊपर क्वेश्चन CBSE ने पूछा हुआ है यार, तो देखो इसको जल्दी से इसको सॉल्व कर दो। तो सोच लो CBSE AP का जो लेवल है वो इतना हाई नहीं रखती है। ओके, इस चीज़ को याद रखना। और AP की अगर जनरल प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो यार AP में कोई भी टर्म हमारे पास ज़ीरो भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। डिफरेंस की बात करिए, ज़ीरो भी हो सकता है, कांस्टेंट भी हो सकता है। अगर 2 2 2 2 है तो उनका जो डिफरेंस है वो कितना है, 1 का है। 3 है तो 3 3 3 3, उसमें कॉमन डिफरेंस 1 है, तो दैट इज़
ऑल्सो इफ इट इज़ अ कॉन्स्टेंट तो वो भी एक AP ही है. लेट्स सी दिस क्वेश्चन. दिस सेज फाइंड द मिडिल टर्म ऑफ द AP. तो वेन एवर यू हैव टू फाइंड द मिडिल टर्म, लेट अस सी अगर इसके अंदर ऑड टर्म्स हैं, इवन टर्म्स हैं, जितनी टर्म्स है उसी के अकॉर्डिंगली बात होगी. A plus n minus 1 into D 216, it is equal to 6 plus n minus 1. अब यहाँ पे n की वैल्यू वी डोंट नो. n minus 1, 13 minus 6, what is 13 minus 6? It is 7. So जब आप इसको सॉल्व करोगे तो you will get n as 31. आप इसको सॉल्व करके देख सकते हो and you can solve this और आपका आंसर 31 आएगा. So now n is equal to 31. 31 is an odd number. So now let us look for the middle term. तो n odd है, कौन सा फॉर्मूला यूज़ होगा? n plus 1/2 वाला फॉर्मूला यहाँ पे यूज़ होने वाला है. 31 plus 1 that is 32/2 which is equal to 16. तो यहाँ पे जो 16th टर्म होगी इस AP की, दैट टर्म इज़ गोइंग टू बी दी मिडल टर्म. तो 16 टर्म निकाल लोगे A plus 15D से. तो यार देखो कितना इजी क्वेश्चन था. ये आया हुआ था CBSE 2015 में फॉर 3 मार्क्स. नाउ लेट अस मूव ऑन टू दिस क्वेश्चन. दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो सुपर ईजी. नाउ सी व्हाट इट सेज. फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ n आर द nth टर्म ऑफ द फॉलोइंग 2 APs द सेम. Now see this question. It says that what values of n, ये जो दोनों APs हैं वो हमारे पास इनकी जो वैल्यूज़ हैं वो सेम होने वाली है. ऐसी कौन सी n की वैल्यूज़ आप सोच सकते हो? तो लेट अस कंसिडर एन एग्जाम्पल. देखो इसका हम मान रहे हैं कि इसकी जो nth टर्म है वो an है और इसकी जो nth टर्म है वो हम ये मानते हैं. और हमें क्वेश्चन में दिया हुआ कि an इज़ इक्वल टू an. हम इसका पहले an कैलकुलेट करेंगे एंड देन वी विल कैलकुलेट इसकी वैल्यू. लेट अस कैलकुलेट 1 7 30 19. सो इसका an आ जाएगा. an इज़ इक्वल टू 1 प्लस n minus 1 into 7 minus 1 6. So here you will get that an is equal to 1 plus 6n minus 6 which is going to be 6n minus 5. So now this 6n minus 5 is equal to इसका an. तो कैलकुलेट करते हैं इसका an. तो इसका जो an आएगा it is going to be, इसका जो an है it will be 69 plus n minus 1 into minus 1. Okay, this is going to be minus n plus 70. तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, अब आप यहाँ पे लिखोगे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन 6n minus 5 it is equal to minus n plus 70. Ignore the noise if it is coming. Okay, 6n plus n it is equal to 70 plus 5 it is 75 and this is 7n. So n की वैल्यू कितनी आएगी? n की वैल्यू it is 75/7 which is not a natural number. It is 75/7. It is not a natural number क्योंकि जो AP में टर्म्स होती हैं, जो D की वैल्यू रहती है वो भी हमारे पास क्या हो सकता है? एक नेचुरल नंबर हो सकता है, होल नंबर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है. लेकिन यहाँ पे जो हमारे पास n की वैल्यू आनी चाहिए, टर्म आपने देखा 25.3 टर्म है ये. आप ये समझ बोलते हो कि 25.3 टर्म है, ऐसा हम कोई टर्म डिनोट नहीं करते हैं. तो हमारे पास कभी भी n जो है वो किसको बिलोंग करेगा? नेचुरल नंबर्स को बिलोंग करेगा. ठीक है, तो ये वैल्यू पॉसिबल नहीं है. सो दैट इज़ वाई वी हैव टू निग्लेक्ट इट. नाउ यही आंसर है आपका कि इट इज़ नॉट अ नेचुरल नंबर. सो देयर इज़ नो n टर्म विच इज़ इक्वल फॉर दीज टू APs. इग्नोर द नॉइज आई एम सेइंग अगेन. ओके, सो नाउ सी which term of the AP 3 15 27 39 will be 120 more than the 21st term? This is very easy question. I want you to try, but still let me give you an idea which term of the AP. So if this is an AP, okay, this is an AP. So now what you will do is calculate the an term. 3 plus n minus 1 into 15 minus 3 it is 12. It is going to be an. So which term would be 120 more than its 21st term? Which term? Okay, so now try to analyze this question first of all. सॉल्यूशन बाद में देखना, पहले क्वेश्चन समझो. क्वेश्चन सेज विच टर्म ऑफ द AP, दिस इज द AP, विल बी 120 मोर देन इट्स 21st टर्म. कैन वी फ्रेम सम इक्वेशन आउट ऑफ दिस? दे आर सेइंग विच टर्म. वी विल से लेट an बी दैट टर्म, बी द टर्म. नाउ उसी से हम यहाँ पे एक इक्वेशन फ्रेम करेंगे एंड दैट इक्वेशन वुड बी, have a look here, that equation is going to be an, it is equal to
120 मोर देन द 21st टर्म, एंड मैंने उसी इक्वेशन को यहाँ पे लिख दिया है. ओके, ए एन इज इक्वल टू 120 प्लस 821. ए एन की वैल्यू हमने कैलकुलेट कर ली, तो दिस इज़ 4n-3. ओके, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी हमने पहले ही ऊपर ये वैल्यू कैलकुलेट कर ली. सो दिस इज 3 इंटू 4n-3. इट इज़ इक्वल टू 120 प्लस 821, वो आगे 243. आगे आप कैलकुलेट कर सकते हो और n की वैल्यू आपके पास आ जाएगी. तो आप इजीली इसको कैलकुलेट कर सकते हो. ये CBSE में 2 बार ये क्वेश्चन आया है, 2016 में भी और 2017 में भी ये क्वेश्चन आया हुआ है. और ये देखो कितना आसान क्वेश्चन है. ठीक है, इससे आप इजीली आइडिया लगा सकते हो. अब ये वाला क्वेश्चन प्रॉपर्टीज़ ऑफ AP भी है. दिस इज़ एन होमवर्क क्वेश्चन फॉर यू. आई विल टेक इट इन माई नेक्स्ट क्लास. देखो प्रॉपर्टी ऑफ AP क्या होती है. अगर हमारे पास ये टर्म्स है ना, A, B और C, हमें पता है कि B माइनस A क्या होगा, वो भी D के इक्वल होगा, और C माइनस B होगा, वो भी कॉमन डिफरेंस के इक्वल होने वाला है. तो अगर मैं इन दोनों को इक्वेट करूँगी, आई गेट b माइनस ए इज़ इक्वल टू सी माइनस बी. तो यहाँ पे b को ट्रांसफर करने से आई विल गेट 2b इज़ इक्वल टू सी प्लस ए. एंड दिस इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ एन AP दैट 2 टाइम्स ऑफ द मिडिल टर्म इट इज़ इक्वल टू द सम ऑफ द एडजेसेंट टर्म्स. दिस इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ एन AP एंड वही यहाँ पे अप्लाई हो रहा है. बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ हैं, बट वी डोंट नीड टू फोकस ऑन ऑल दोज प्रॉपर्टीज़ बिकॉज फॉर लाइक 10th स्टैंडर्ड ओनली दिस इज़ यूजफुल. नाउ दिस इज़ MCQ टाइप. अब यहाँ पे आप इन MCQs को ट्राई कर सकते हो. एक्चुअली आपको मैं होमवर्क देना चाहती थी, बट थोड़ा आइडिया थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं. इस AP में D दिया हुआ है, N दिया हुआ है, AN दिया हुआ है. A की वैल्यू क्या होने वाली है, AN इज़ इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 इंटू डी. आई होप इससे ईजी कोई MCQ नहीं होने वाला है. A की वैल्यू डायरेक्टली मिल रही है. नंबर ऑफ टर्म्स इन द AP, तो ये वाला जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नंबर ऑफ टर्म्स इन द AP. AN दिया हुआ है, A भी दिया हुआ है, D भी दिया हुआ है. N की वैल्यू आराम से कैलकुलेट हो जाएगी. विच टर्म इज़ द फर्स्ट नेगेटिव टर्म ऑफ द AP. हाँ, ये क्वेश्चन बड़ा डिमांड में आता है, तो उसको देखते हैं. तो हमारे पास जो टर्म होगी वो 0 से छोटी टर्म होगी. अब A प्लस एन माइनस 1 इंटू डी. अब ये जो n माइनस 1 इंटू डी वाला फॉर्मूला यूज़ कर रहे हो ना, इससे आपको n की वैल्यू कैलकुलेट करनी है. A की वैल्यू डाल दो 20 प्लस n की वैल्यू में नहीं पता, n माइनस 1 17 माइनस 20, आई होप इट्स माइनस 3 और 0. और यहाँ पे वैल्यू आपको मिल गई है 20 माइनस 3n प्लस 3 इज़ लेस देन 0. 20 दिस इज़ 23 माइनस 3n इज़ दिस एंड 23 3n 23/3. तो यहाँ पे अब जो आपकी n की वैल्यू आने वाली है, कौन सी वैल्यू होगी वो n की वैल्यू होगी जब आप इसको 3 से लाइक डिवाइड करोगे, तो n की हमारे पास इससे क्या पता चल रहा है कि n जो है वो इससे बड़ी वैल्यू होगी उसकी. ठीक है, n की वैल्यू इससे बड़ी होगी, मतलब n की वैल्यू इस पर्टिकुलर से छोटी अगर होगी तो फिर क्या होगा, वो वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी. समझ में आ रही है ये बात. तो यहाँ पे आपको 23 को इसे डिवाइड करना है, तो ये आपके पास आ जाएगा 7 पॉइंट समथिंग 32.0. दिस बिकम 7.6. अब देखो जब 7.6 है ना, ये अभी भी पॉजिटिव है. ठीक है, 7.6 अभी भी पॉजिटिव है. इसको राउंड ऑफ करोगे यू विल गेट 8. तो मतलब 8th टर्म वो पहली टर्म होगी इस AP की जो नेगेटिव होगी. जब आपको नेगेटिव टर्म देखनी होती है ना, तब आपके पास जो आंसर आ रहा होता है उसे एक आगे आपको जाना होता है, उसको राउंड ऑफ करना होता है. जब आपको एक पॉजिटिव टर्म देखनी होती है, तो आप अगर आपको बोलते हैं पॉजिटिव टर्म तो 7th टर्म लेते हैं, नेगेटिव टर्म तो 8th टर्म आती. क्यों? क्योंकि 7.6 अभी भी एक टर्म नहीं है. एज आई टोल्ड यू, इट इज़ नॉट अ होल नंबर और नेचुरल नंबर, तो इसलिए वो चीज़ पॉसिबल नहीं है. अब कुछ क्वेश्चंस आपको मैंने होमवर्क के लिए भी देने हैं. ठीक है, तो अब इसको ध्यान से देखना आगे. ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तभी मैंने इसको स्टार मार्क किया हुआ है. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. अब यहाँ पे देखते हैं. राइट द एक्सप्रेशन AN माइनस AK फॉर द AP A प्लस D. तो इफ़ दिस इज़ क्लियर टू ऑल ऑफ यू दैट AN क्या होता है, AK क्या होता है, एक्चुअली कोई भी इधर टर्म आ जाए वो मैटर ही नहीं करती है. AN हो, AK हो, AT हो, कुछ भी आ जाए, क्योंकि वहाँ पे तो आप n की जगह पे, मतलब n की जगह आपने कोई वेरिएबल रख दो, कुछ भी रख दो, तो उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता. व्हाट वुड बी AN वुड बी A प्लस n माइनस 1 इंटू डी. व्हाट वुड बी AK इज़ A प्लस K माइनस 1 इंटू डी. इसमें कुछ आपको आई होप फ़र्क नहीं पड़ता है. तो आपको लिखना है इसके लिए एक्सप्रेशन AN माइनस AK कर दो. AN माइनस AK करने पर आपके पास यू विल गेट A और A कैंसिल हो जाएगा.
अब यहाँ पे आपके पास देखो जैसे a प्लस एन माइनस वन इंटू डी माइनस ए प्लस के माइनस वन इंटू डी, ये वैल्यू आप करोगे तो ये आपका a प्लस डी एन माइनस डी माइनस ए माइनस डी के प्लस डी. ओके, तो d and d will get cancelled and a will get cancelled. d n माइनस k, इट इज़ द रिलेशन जो कि इनके बीच में a n माइनस a k के बीच में रिलेशन है. नाउ सी वन थिंग, यहाँ पे आपके पास जो नेक्स्ट चीज़ आती है दैट इज़ हेंस फाइंड द कॉमन डिफरेंस ऑफ द ए पी फॉर विच 25th टर्म A25 is 10 more than the A23. You can solve this question. Okay, you can solve this question very easily. You have a plus 24d 10 plus a plus 22d and you have to find common difference. A and a will get cancelled. You have only one variable left with you, 24d minus 22d. 2d is equal to 10 and d is equal to 5. So you get the value of d from here. I hope this is clear to all of you. And now see this, the 8th term of an AP is 0. Now it is a plus which term? A plus 7d is 0, means a is equal to minus 7d, and this is the thing that you need to understand in this question. This is the main point in this question that you need to understand. So you get the value a is equal to minus 7d. Now everything will be easy. Prove that it's 38th term. What is a38? A38 is a plus 37d, right? It is triple the 18th term. Put the value a as minus 7d, it is plus 37d, it will be 30d. Now you have 18th term, a18, it is a plus 17d. Now it is minus 7 plus 17d, it is 10d. Now everything is clear. Like if you multiply a18 multiplied by 3, it is equal to a38, and this was what you have to prove in your question, and that's end. This question is killed now. Okay, so now I have some questions for you as your homework, and here we are going to end our session. Okay, these questions are your homework questions. These are very easy. I would take it in my next class if needed, because I don't think there is a need, because all these questions are super easy. These are all the previous year CBSE's question, and I will bring the next session after this. It would be on the sum, and then AP is finished. AP is killed now. You don't need to do any other thing. If you have done, like you have practiced very well, just ignore the noise. और अगर आपने अच्छे से प्रैक्टिस किया हुआ है बाकी बुक से तो बहुत अच्छी बात है. And after that, I hope that you all have subscribed to my channel till yet, and I'll be back with another video very soon. Till then, goodbye and keep studying. Bye bye.